Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome Metropolitan Foundation e-learning YouTube channel. I am your IT teacher Miss Farah Shaheen. Today, month of August, unit number 1, video number 3. The unit name is the evaluation of computers. Okay students, book number 6, GABA Computer Today, written by Danish Nazir. Okay, let's start month of August, unit number 1. In this unit, we will learn first topic is electronic computers. ABS, classes, Mark 1, ENIAC, ADVIC. International Business Machines, IBM. Number 2, generations. First generations of computer, second generations, third generation, fourth generation, fifth generations. Number 3, types of computers: supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer, and wearable computer. Okay, student, we will cover 3 topics: electronic computers, generations, type of computers. Okay, let's start our explanation. That will start from electronic computers. We have discussed before types of computer. After that, we will discuss electronic computers. Let's start our explanation. Okay, students. Let's start our explanation. Page number electronic computers. Page number 4. ABS 1939, the first digital computer. ABS, all of the electronic computer that applied computer security, was designed by John, and after that ENIAC, the full form ENIAC, electronic numerical integrated computer, the first programmable general purpose electronic digital computer built by during World War II by the United States. United States ने इसे बनाया. फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर. और इसे किसने बनाया? यूनाइटेड स्टेट. और अंडर आर्मी के सुपरविजन में ये बना. आर्मी के अर्ली 1943 में ENIAC बन चुका था. नंबर 2 के ऊपर अगर हम देखें कंप्यूटर के अंदर, तो आपका है मार्क 1. मार्क 1 आफ्टर दैट ENIAC एंड द ADVIC. ADVIC stand for electronic numerical integrated calculator. ENIAC. ADVIC electronic digital computer. The electronic numerical integrated calculating ENIAC was designed for the doing the calculation billions during the World War II. ENIAC was general purpose computer and could compute 1,000 times faster than Mark 1. It was the first electronic digital computer
ENVIC, the original model of the most modern computer evaluated of the contain almost all the component and the concept of today's high speed इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। देखिए इसमें जो खासियतें थी एडविक में, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दी, ऊपर भी बता दी, नीचे भी बता दी। हमें बस अभी क्लास 6 में इतना ही याद रखना है कि ये हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रो कंप्यूटर भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि पहले हमने मैनुअल कंप्यूटर्स को पढ़ा। अब ये है एडविक जो है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर है और इसमें वो सारी चीजें थी जो आज के कंप्यूटर में हम देखते हैं। सही है। और ये बना किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इट बिगेन एज द कंप्यूटिंग tabulating recording computer founded by the Herman Horlith in the late 18. The first large contract was to provide tabulating equipment for the 1819 USA। अब देखिए एक कंपनी डेवलप हुई 1964 के अंदर, इसमें हुई 1964 में, और इस कंपनी का नाम था IBM। IBM की फुल फॉर्म आपके पेज नंबर पर लिखी हुई है, आप परेशान नहीं होइएगा। पेज नंबर 5 के ऊपर IBM सिस्टम 360 1964 में बना। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन डेवलप्ड 360 मेन फ्रेम मॉडल। इसका मॉडल क्या था, नंबर क्या था? 360। ऑल अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम इट वाज डिजाइन्ड द ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी एंड वाज अवेलेबल फॉर द बोथ कमर्शियल एंड साइंटिफिक यूजेस। अब इसका काम क्या था? ये एक IBM सिस्टम 360 क्या थी? कंपनी बन गई कंप्यूटर की, और ये आज भी बड़ी रिलायबल कंपनी है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो IBM नंबर 1 कंपनी कहलाती है। तो हमें हमारे इस बुक के अंदर डिजिटल कंप्यूटर्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है मार्क 1, एनविक, एडविक, और इसके बाद IBM सिस्टम 360 आता है। बस हमें ये 4 नेम्स याद करने हैं, इनकी फुल फॉर्म याद करनी है। इसकी मुश्किल टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना है, ये बहुत मुश्किल है। तो अभी क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही समझना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बेस करता है जनरेशंस के ऊपर। कंप्यूटर जनरेशंस की डेवलपमेंट स्लोली और ग्रेजुअली हुई है, तो उसे हम देखते हैं और अपना सेकंड टॉपिक के ऊपर स्विच करते हैं, जो कि जनरेशन। अच्छा जी, देखिए कंप्यूटर को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक करें ऑफ वेरियस कंप्यूटर को, तो इनका डेवलपमेंट हुआ है टाइम बाय टाइम। दे आर कैटेगरीज बाय जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ हम आपको 5 जनरेशंस बता रहे हैं। ये 5 जनरेशंस हम एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताएंगे कि इनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई। तो पहली जो है वो है फर्स्ट जनरेशन, फिर है सेकंड जनरेशन, फिर है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। अब इसमें क्या है, सबके अंदर, इन जनरेशंस के अंदर कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट हुई है। सही बात समझ में आ रही है? डेवलप हुए हैं कंप्यूटर्स, यानी पहले कंप्यूटर्स में जो खासियतें थी उनको रखने के बाद जो प्रॉब्लम्स थी उनको सामने रख के हर दफा इसे क्या किया, चेंज किया गया। तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर की जर्नी कहलाती है, जो कि 5 जनरेशंस के ऊपर
कैटेगराइज की गई है। ठीक है, तो हम स्विच करते हैं आगे फर्स्ट जनरेशन के ऊपर। अच्छा जी, जनरेशन्स के अंदर सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन, जो कि स्टार्ट हुई 1945 से। एक तो क्वेश्चन ये अभी याद कर लीजिए कि इसका टाइम पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुई, 1945 से 1956 के अंदर। और इसमें क्या जनरेट हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स। अब अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या कहलाते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। अगर वैक्यूम ट्यूब्स को अगर हम वैसे देखें क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देख लीजिए छोटे छोटे बल्ब जो कि ऑन एंड ऑफ हो रहा है। क्या है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स जो बनाए गए वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स के अंदर बनाए गए। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, थाउजेंड्स हजारों की तादाद में वैक्यूम ट्यूब्स की इजादात हुई, जो कि कंज्यूम करता था बहुत ज्यादा पावर, बिजली, जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और इसमें क्या होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती थी। और ये बहुत बड़े साइजेस के अंदर थे और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। ये यूज भी करना शुरू कर दी थी उस वक्त इन्होंने मशीन लैंग्वेज। अच्छा जी, ये मशीन लैंग्वेज जो डिजाइन हुई थी वो 0-1 की फॉर्म में हुई थी। किसमें हुई थी, 0-1 की फॉर्म में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले क्या क्या पॉइंट मैंने बताया आपको, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। और ये वैक्यूम ट्यूब्स हजारों की तादाद में होते थे, कंज्यूम करते थे लॉट्स ऑफ पावर्स, और ये बड़े अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते थे और बड़े साइज में होते थे, यानी बहुत एक्सपेंसिव होते थे। और मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू हो गया था, जो कि 0-1 की फॉर्म में होता था। पंच कार्ड एंड द पेपर टेप दोनों का यूज हुआ है इसमें, पंच कार्ड का भी यूज हुआ है और पेपर टेप का। अच्छा जी, फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एंड एडिशन सब्ट्रैक्शंस दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा डिवीजन भी कर सकते हैं। 350 मल्टीप्लिकेशन पर सेकंड इनकी रफ्तार थी। सही है ना, 5000 का एडिशन अगर ये करते थे तो ये मिनट में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मिनटों सेकंडों के अंदर ये एक मुश्किल कैलकुलेशन को कर रहे थे। और इसमें क्या क्या यूज हो रहे थे, पंच कार्ड और पेपर टेप। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है, लार्ज इन साइज है, वेरी एक्सपेंसिव है, मशीन लैंग्वेज यूज हो रही है, पंच कार्ड और पेपर टेप इसी में यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। फर्स्ट जनरेशन की का अगर टेबल के अंदर हम देखें तो हमें किसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, 1945 से लेकर 1956। ओके, अब मूव करते हैं हम सेकंड जनरेशन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो टाइम है वो है 1956 से लेकर 1963 तक। इसमें यूज होते हैं ट्रांजिस्टर। ये देखिए, ये 1, 2, 3 एक छोटी सी पेन है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर्स। क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स किस काम में आता है, ये भी वही जो अभी हमने पहले बताया था आपको, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ का सिग्नल देता है एक तरह से ना। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो ये आपको ये भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ना, अभी मैं बताऊंगी तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इससे याद कर ले कि सेकंड जनरेशन का टाइम है 1956 से लेकर 1963 तक। और इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स बनाए गए। ट्रांजिस्टर एंट्री, ट्रांजिस्टर्स की फुल फॉर्म क्या है, इसे आईसीज भी कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछे ये आईसीज, आईसीज क्या है,
आईसीस की फुल फॉर्म क्या है? आईसीस के आगे छोटा सा एस लगता है, इतना सा, तो ये ऐसे लिखा जाता है आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं इसे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। अब वो कौन सी थी जो आईसीस ट्रांजिस्टर्स को जिसमें यूज किया गया? वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर इसे यूज किया गया। इसे रेडियो कंप्यूटर भी कहते हैं। मोबाइल फोन को देखें आप और दूसरे डिवाइसेस को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जितनी भी है वो किससे बनी है? इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी है, आईसी से बनी है। तो इसमें क्या क्या लगती थी? ये आईसी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईसी, आईसीस यूज्ड। इसमें क्या होता था? ट्रांजिस्टर्स होते थे, स्मॉल हो गए थे और फास्ट हो गए थे। अब उसका साइज में थोड़ा सा फर्क आया था। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा थे, फर्स्ट जनरेशन की निस्बत ये छोटे हो गए थे, चीप हो गए थे, मोर रिलायबल हो गए थे, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए थे, मोर एनर्जी एफिशिएंट हो गए थे, यानी इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती। स्टिल जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट, लेकिन इसमें भी एक खराबी थी, तो उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी, लेकिन इसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी। यूज मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी और सेव ट्रांजैक्शंस इन मेमोरी। लेकिन अब इसमें मेमोरी के अंदर नंबर्स रहे। यूज्ड मशीन असेंबल लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज यहाँ पर जो कि असेंबल लैंग्वेज है वो इसमें यूज होने लगी। किसमें? सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सवाल आता है कि ट्रांजिस्टर्स आईसीस का कौन सी जनरेशन में आए, तो आपका जवाब होगा सेकंड जनरेशन में। इसमें क्या है? ये मोर रिलायबल कंप्यूटर हो गए, और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो हो रहा है कि इसमें मशीन लैंग्वेज यूज हो रही है जो कि असेंबल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सेकंड जनरेशन फिनिश हुई। सेकंड जनरेशन के अंदर देखें तो हमें आईसीज ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स कर रहे हैं। वहां वैक्यूम ट्यूब कर रहे थे, यहाँ ट्रांजिस्टर्स कर रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ, जिसका टाइम पीरियड है 1964 से 1971 तक। कहाँ तक है? 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा है, वही जो हमने अभी पढ़ा था, और अब इसमें से देखिए एस हट गया, आईसीज रह गए सिर्फ। अब ये जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन में आईसीज हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा, स्मॉल हो गए और छोटे साइजेस में हो गए, चीप हो गए और सस्ते हो गए सेकेंड जनरेशन से। एक्सेस यूजिंग कीबोर्ड, अब इसमें कीबोर्ड मॉनिटर यूज होने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर यूज होने लगा, एंड मेड अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ये बहुत ज्यादा लोगों को मिलने लगे। देखिए जिस वक्त कंप्यूटर बने थे तो ये बहुत महंगे थे, महंगे होने के साथ साथ ये आम लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर जब आईसीस का यूज हुआ तो इसमें क्या हुआ? आईसीस का यूज होने से ये कंप्यूटर थोड़े सस्ते हो गए और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें यूज हुआ और यूजर फ्रेंडली भी हो गई। ठीक है, यानी आम लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो 1964 से और 1971 का टाइम पीरियड के अंदर बने, और इसमें
आईसीज का इस्तेमाल होने लगा। और ये आईसीज अगर हम देखें तो ये इस तरह की थी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की जहां बात हो रही है तो वो ये आईसीज है, ये वाली। थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें। और उसके बाद जब हम स्विच करते हैं फोर्थ जनरेशन के ऊपर। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 71 से लेकर अब तक, जो अभी करंट टाइम चल रहा है ये है। अब इसमें देखिए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर की क्वालिटी के अंदर अब आगे आईबीएम ने इसकी प्रोसेसर्स को, कि इसकी अगर बनावट को देखें तो ये फर्स्ट प्रोसेसर की तरह है। माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो का मतलब है छोटा, स्मॉल इन साइज के अंदर बनने लगा। और माइक्रो प्रोसेसर विद द फास्टर एंड पॉपुलर हो गया बहुत ज्यादा। ये वेरी लार्ज स्केल में इंटीग्रेशन होने लगी, लार्ज स्केल के ऊपर। देखिए इनों की साइज अब देखिए अब छोटे हो गए। थाउजेंड्स ऑफ आईसीज ऑफ अ सिंगल चिप। अब ये देखिए थाउजेंड्स, ये हैं आईसीज हैं, ये भी आईसीज, ये देखिए इंटीग्रेटेड ही सर्किट है, लेकिन क्या है ये किसमें है, एक सिंगल चिप में। ये देखिए एक सिंगल चिप में। अब इसके लिए कोई हमें बड़ी, ये एक छोटा स्मॉल प्रोसेसर कहला रहा है, इसे हम प्रोसेसर कहते हैं। सही है, स्मॉल एंड पोर्टेबल यानी छोटा हो गया, चीपेस्ट हो गया, सस्ता हो गया, वर्क एट हाई स्पीड, इसकी हाई स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गया, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो 1971 से लेकर अब तक जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा। सही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गई, थाउजेंड ऑफ आईसीज एक सिंगल चिप में आ गई, स्मॉल हो गया, पोर्टेबल हो गया, चीप हो गया और आसान हो गया, यानी काम करने में बहुत आसानी हुई। लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे और ये लोगों की, कहना चाहिए, डेली इस्तेमाल में आने लगा। ठीक है, आज भी हम देखें तो हर घर में कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर की शक्ल जो है वो स्मार्टफोन के थ्रू भी चेंज होती जा रही है, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोर्थ जनरेशन कंप्लीट कर ली, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन हो गई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गई एक सिंगल चिप के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आज का करंट दौर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो फ्यूचर का जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, ये 5G इसी से मिलकर बनी है। 5G ऑफ कंप्यूटर 1980 से लेकर आज का प्रेजेंट का दौर कहलाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप कंप्यूटर तो देखिए बने थे, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट का बनना, उड़ने वाली और बहुत सारी चीजें ऐसी, उड़ने वाली कार का बनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी स्पेस के अंदर बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना फिफ्थ जनरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ये भी फिफ्थ जनरेशन की देन है, यानी हमारे कंप्यूटर के बाद अब हमारे पास स्मार्टफोन आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टेक्निक विच मशीन इज मेड टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ए ह्यूमन बींग्स। ये आप देखिए इसको, रोबोट को, तो ये अब रेस्टोरेंट के अंदर रोबोट का इस्तेमाल हो गया मशीनों की जगह, जैसे सफाई करने की मशीन है बन गई हैं, आप
दूसरी है कि आप बटन लगाओ तो वो आपकी सफाई कर देंगी। दूसरा, ये डिसीजन लेने लगी ह्यूमन बीइंग की तरह। वी विल बिल्ड अ इंटेलिजेंस, और बहुत सारे कैपेबल हो गए, मैनी स्पोकन लैंग्वेजेस कैपेबल हो गए हम लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हमने यहाँ पर 5th जनरेशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 5th जनरेशन के अंदर ये रोबोट की इजाद है, इलेक्ट्रो कार की, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, विदाउट ड्राइवर के कार चल रही होगी ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। और उसमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं, आप बैठे और आराम से अपनी जहां आपने जाना है वहां चले। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है करंट दौर, करंट टाइम के लिए है, और फ्यूचर तक ये चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हमारी 5th जनरेशन खत्म होती है। Okay, students. Now I switch to homework. Today's homework, page number 10 and 11, exercise 1, 2, 3. Okay, students. Today's homework, you write date and homework and write your unit name. First of all, make a title page, then after प्रीवियस वीडियो में जो काम दिया गया है वो करना है। उसके बाद ये वाला इस वीडियो का काम है, और आपको किस तरह से करना है इस काम को मैंने आगे आपको समझाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। आपने सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर क्या करना है, कॉपी पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1 लिखेंगे, सही है। एक्सरसाइज 1, राइट ट्रू एंड फॉल्स ब्लैक पेन से। पहला है ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर, सही है। ये आपका जिस तरह से ये बना हुआ है, और यहाँ देखिए इसके आगे हमने ये यहाँ पर ब्लैक ये दिए हैं। अब आपने ट्रू और फॉल्स जो भी लिखना होगा तो आप ये इस तरह से लाइनें डालेंगे जैसे कि बुक में, और इन ए से लेकर आई तक आप 1 2 3 करके नहीं उतारेंगे, बल्कि ए बी सी डी ही लिखेंगे जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है। जब आपकी वीडियो आ जाएगी तो मैं ये आपको, जिस दिन आपकी वीडियो आएगी उसी दिन मैं आपको ये ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करके बता दूंगी। लेकिन आपने क्या करना है, इसको राइट डाउन करना है अपनी कॉपीज के ऊपर, ताकि आप जो बर्डनाइज हो जाते हैं वो ना हो, और आपको ये भी बात समझ में आ जाए कि आपको क्या काम करना है। तो पहला क्या दिया है मैंने, ट्रू एंड फॉल्स, मैं पढ़कर भी बताऊंगी तब, और आपको अभी सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे ये ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, ए से लेकर आई तक आप राइट डाउन करेंगे। अगर यहाँ पर आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ब्लू यूज करेंगे, और अगर यहाँ पर ब्लू यूज कर रहे हैं तो फिर ट्रू एंड फॉल्स आप ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपको जो पसंद है आप वो करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स को भी इसी तरह से करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, और फिर ए से लेकर एफ तक आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन करना है। लेकिन ये ब्लैंक्स जो है ये जरा स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़िएगा, स्पेस जरा ज्यादा छोड़ के आप लिखेंगे, ठीक है। ए से लेकर एफ तक आपने ये उतारनी है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 हो गई, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 में क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग।
इसकी फुल फॉर्म आपकी बुक में लिखी हुई है, आपने बुक को बड़े थॉरली पढ़ना है और ये तीनों क्वेश्चंस आपने करने, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ वीडियो फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर स्कूल। आप अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। वी विल मीट इंशाल्लाह इन आवर स्कूल वेरी सून। टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एसओपीज को फॉलो कीजिएगा, होमवर्क बहुत नीट एंड क्लीन करना है, कोई कॉपी को खराब नहीं करेगा। कोई अगर बात समझ में नहीं आए तो जब आपकी वीडियो जाएगी तब आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं आपको पूरा समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। नहीं आता है तो मुझसे 10 सवाल कर सकते हैं आप, लेकिन काम गलत नहीं करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वी विल मीट इंशाल्लाह वेरी सून इन आवर स्कूल।